हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारी बच्चे में। सो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी साइंस बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सो बेसिकली फाइबर मतलब वो होता है जैसे कोई जैसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वैरायटी इन फाइबर्स मतलब फैब्रिक्स। तो फैब्रिक जो होता है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो फैब्रिक तो फाइबर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। दो तरीके के फाइबर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सो वो जो फाइबर्स होते हैं उनसे कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप, collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Exactly. Now look at it closely. What do you notice? So आप अगर एक जैसे कोई कपड़ा हो उसको आप देखेंगे कि वो फैब्रिक का बना होता है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो उसमें जो धागे निकले होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबर। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न। यार्न अब पढ़ते हैं अब हम लोग। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट इफ नो लूज। You can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made up of? So fiber मतलब fabrics yarns को अगर यहाँ सारे yarns मतलब जो थ्रेड होते हैं उनको हम वो करते हैं। सो थ्रेड को जो बहुत सारे थ्रेड्स को मिलाकर जो बनता है वो होता है फैब्रिक। बट जो यार्न होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं फाइबर के। सो ये पूरा प्रोसेस है। You might have observed something similar when you tried to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle, of course. The thin strand of thread that we see are made up of thinner strands called fibers. So this was fiber. Fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. Fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. The fibers of some fabrics such as cotton, jute and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. So the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk are obtained from plants and animals. मतलब naturally जो obtained हुए हैं उन्हें हम कहते हैं natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool हमें sheep हमें wool देती है और silk worm हमें silk देता है, तो वो भी natural fibers हुए. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Okay. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. Okay, but जो फाइबर्स केमिकल से बने होते हैं और वी कैन सी जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन नहीं हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सम प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट. तो कॉटन और जूट प्लांट से ऑब्टेन हुआ है. तो पहले हम कॉटन पढ़ते हैं. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? जो विक्स बेसिकली वो होती हैं जो कॉटन की बनी होती है, उन्हें हम रोल करते हैं, फिर दिया में डाल देते हैं, फिर उन्हें जला देते हैं, तो वो बेसिकली विक्स होती है.
What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses or pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? Okay, तो अब हम ये जानेंगे कि कॉटन वूल कहाँ से आता है. इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द फील्ड्स. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन बॉल्स वहाँ पे मतलब कॉटन प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है और वार्म क्लाइमेट होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? अगर आपको पता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. The fruits of the cotton plant, cotton balls that are known as the fruit of the cotton plant are known as cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Okay, so अब हम पढ़ेंगे jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam also. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. Okay, to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns, as I already told you. How is it done? तो फाइबर जो होते हैं उन्हें यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो वो हम जाना है. स्पिनिंग. फर्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग. तो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब फॉर forefinger of the other hand. Now gently start pulling the cotton gently while continuously twisting the fibers. Are you able to make yarn? If yes, then subscribe कर दीजिएगा मेरे चैनल को. The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. ओके, नाउ अब सेकेंड प्रोसेस है. फर्स्ट हम लोग ने कॉटन मतलब जो फाइबर है उसको हम लोग ने यार्न में कन्वर्ट कर दिया. अब यार्न को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं वीविंग और नाइटनिंग. तो वीविंग का पढ़ते हैं. You might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper stripes. So आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं. Now second process knitting जो कि उसको भी वही कहेंगे. Have you noticed how sweaters are knit? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled. So basically, अगर आपके पास कोई ड्रेस है तो उसमें आप धागे देखेंगे, बट अगर आप उस धागे को खींच देंगे तो सारे धागे खुलते खुलते चले जाएंगे और आपकी पूरी ड्रेस पता नहीं ख़त्म ही हो सकती है. तो ये इसमें बताया गया है. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे. अब ये चैप्टर एक्चुअली ख़त्म हो गया है. सो इसमें हम लोग ने पढ़ा कॉटन के बारे में, फैब्रिक टू मतलब फाइबर से यार्न कैसे बनता है उसके बारे में, मतलब फाइबर से उसको यार्न को कैसे बनाते हैं, और फैब्रिक से मतलब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, जूट के बारे में पढ़ा, ये सब पढ़ा. सो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, सो पहले आप मुझे बताइए जो फाइबर से जब हम यार्न को फाइबर से मतलब फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके पास है 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. उसे कहते हैं हम स्पिनिंग. अभी हम लोग ने पढ़ा था. और जो हम फैब्रिक्स को मतलब यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके पास फिर से 5 सेकेंड है. 5 4 3 2 1. उसे हम कहते हैं वीविंग या फिर नाइटनिंग.
सो अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।